ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਦਾ 2023 ਆ ਚੁੱਕਿਆ। 2023 ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਚੈਨਲ ਫਨਕਾਰ ਮੈਥਸ, ਫਨਕਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਰਾਈਟ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ PSPCL PSTCL ਜਾਂ ਫਿਰ PSSSB ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ। ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੋਟਸਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਜੇਕਰ ਪੈ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਲਜੈਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਜੈਬਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ PSSSB ਹੈ, ਚਾਹੇ PSPCL, ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਅਲਜੈਬਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਵੇਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਜੈਬਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਬਸ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਈਪ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਜੈਬਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ, ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਜ ਐਂਡ ਇੰਡੀਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਜ ਐਂਡ ਇੰਡੀਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਅਲਜੈਬਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਆਹ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਲਜੈਬਰਾ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਅਲਜੈਬਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, 100% ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, PSSSB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਗਨੋਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਬਲੀਵ ਮੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। 10 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ A³ + B³ + C³ - 3ABC ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾਗਾ A + B + C ਦੇ A² + B² + C² - AB - BC - CA। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ A³ + B³ + C³ - 3ABC ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? A + B + C ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, A² + B² + C² - AB - BC - CA। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ
यानी आही फार्मूला किन्ने ही क्वेश्चन तुहाडे सॉल्व करवा दूंगा। देखो पेपर दे विचों किवें सॉल्व हुंदा, देखो ध्यान दे नाल। हुण a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इहदे बराबर है। जे मैं इत्थे कहां इफ a प्लस b प्लस c बराबर 0, जे मान लो a प्लस b प्लस c 0 होवे, यानी a प्लस b प्लस जे मान लो 0 होवे, तां a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कि हो जाऊगा, आह 0 है, आ 0 हो गया क्योंकि मैंने दिता होया a प्लस b प्लस c 0 हो गया, एंड मल्टीप्लाई आह सारा जिहड़ा लिखिया होया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, राइट है 0। तब बेसिकली यह की हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कि आ गया जी 0 दे ही आ गया, क्योंकि 0 नूं मैं जिहदे नाल मर्जी मल्टीप्लाई करदा 0 ही आऊगा। यानी इत्थे मेरे कोले इत्थों की आ गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 हो जाऊगा कदों, जदों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होवे। जदों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा, राइट। जे मैं इदू गाहां लिखना होवे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मेरा किहदे बराबर आ जाऊगा जी, मेरा बराबर आ जाऊगा 3abc के बराबर। जेकर माइनस 3abc मैं उधर चक के ले जा तो यह 3abc के बराबर आ जाऊगा, तो यह 3abc के बराबर आ जाऊगा। आह फार्मूला हमेशा याद रखना है। यानी अज का जो कंसैप्ट आप समझण जा रहे हैं वो ये समझण जा रहे हैं कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाऊगा 3abc दे कदों, जदों इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 दिता होवे। ए प्लस बी प्लस सी जदों भी 0 होगा तो हमेशा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा जी 3abc दे। हुण आपां ध्यान नाल देखना होगा कि ए प्लस बी प्लस सी है जोड़ा वो 0 बन रहा या नहीं, तो आ अज तुसी नोट करना। हुण इदों बाद देखियो क्वेश्चन किवें निकलदे आ इन्ने सौखे तरीके दे नाल, राइट है। यानी तुसी बिल्कुल भी मैथ पढ़िया नहीं तां भी तुहाडा मैथ है जोड़ा वो सॉल्व होण लग जूगा। जिवें मान लो आह क्वेश्चन है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ जी 20 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। हुण देख के बड़ा डर लगता भी यार आपां नूं क्यूब करना पऊगा, राइट। होर भी मैं डरावने क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये तो फिर भी 20 30 50 गा, राइट। तो मैनूं किवें पता लगूगा भी यह क्वेश्चन उही है। पहली गल तो क्यूब दिता होया सारे पिछे, राइट। तो हुण जे मान लो मैं की कहां, जे मान लो 20 क्यूब नूं यानी 20 नूं मैं मान लो इहनूं ए मानना, राइट। इहनूं मैं मानना जी बी, राइट। इहनूं मैं मानना बी 30 नूं, इहनूं मानना मैं 50, राइट, यानी सी नूं, राइट। हुण इत्थे ध्यान दे नाल नोट करो, इत्थे की दिता होया आपां नूं इत्थे दिता होया जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। आपां नूं की दिता होया ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। मेरे नाल दे नाल दिमाग दे विच आया कि यार यह किते आही तां नहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब हो सकता है, किमें हो सकता भला प्लस सी क्यूब। देखो इहनूं मैं एवें भी तो लिख सकदा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस दा सी क्यूब, माइनस दा सी क्यूब ब्रैकेट च रख लेना, इत्थे प्लस ही आ गया तो यह बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बस इत्थे सी माइनस दा कोई चक्कर वाली गल नहीं। तो मैं सब तो पहले नोट करूंगा कि किते ए प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं बन रहा, किते ए प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं बन रहा। देखो ए की वैल्यू की है बी है, बी की वैल्यू की है 30 है, सी की वैल्यू की है माइनस 50। तो 20 ते 30 50 50 50 माइनस 50 0 हो गया। यानी कहने का मतलब ये तो वैल्यू 0 बन गई। यानी ए प्लस बी प्लस सी आपां नूं 0 दिता होया, ए प्लस बी प्लस सी आपां नूं 0 दिता होया कि जदों भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होवे ते ए प्लस बी प्लस सी 0 होवे तो यह हमेशा किहदे बराबर होगा 3abc दे 3abc दे बराबर होगा। पर इत्थे माइनस आ जाऊगा, क्यों? क्योंकि मैनू सी की वैल्यू माइनस दी हुई आ, तो सी की वैल्यू माइनस आ तो सारे दे मूरे माइनस आ जाऊगा। यानी मेरा आंसर की आ गया माइनस 3abc। ध्यान दे नाल दोबारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc दिया कदों, जदों ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिता होया ते आपां ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कढ लिया। 20 ते 30 50 माइनस 50 0 बन गया। ਇਹਦਾ मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc ਦੇ बराबर होगा। सी ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ माइनस सी लाता। यानी हुण मैं की करनागा सिर्फ माइनस 3 गुणा ए दी वैल्यू पुट करूंगा बी की वैल्यू पुट करूंगा 30 तो सी की वैल्यू पुट करूंगा माइनस 50, सी की वैल्यू पुट करूंगा माइनस
-50 हुण इत्थे माइनस मैं क्यों नहीं लाया क्योंकि मैं माइनस ऑलरेडी ला दिता है -3 ABC ऑलरेडी लाता तो इत्थे माइनस ना ला दो दोबारा राइट चा बेसिकली कितना आंसर आ गया मेरा 3 दूनी 6 3 18 5 90 90 आ गया माइनस का तो इत्थे कितना आ जाऊ 1 2 ते 3 जीरोआं मेरियां आ गईयां 3 जीरोआं मेरियां आ गईयां यानी -90,000 आंसर आ गया यानी मेरा आंसर आहा पिया -90,000 यानी मेरा आंसर आहा पियागा समझ में बात आई राइट है ना कितना ज़्यादा सौखा हुण ये अलजैबरा सिंपलीफिकेशन नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है क्वेश्चन इत्थों डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं राइट है हुण इत्थे पॉजिटिव का भी हैगा तां ही कहना साइन का भी ध्यान रखना क्योंकि इत्थे माइनस तां आया क्योंकि सी की वैल्यू नैगेटिव है तो मैं नैगेटिव वैल्यू लै ली इसे करके माइनस लाया -3 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 50 -90,000 आंसर आ गया हुण देखो इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन आप करते हैं किन्ने सिंपल तरीके दे नाल निकलणगे जिवें हुण मान लो आपां नूं दित्ता होया जी a - b दा होल क्यूब प्लस b - c दा होल क्यूब प्लस c - a दा होल क्यूब हुण कईयां नूं होल क्यूब देख के हौल पै जांदे आ भी यार किस तरीके दे नाल सॉल्व करांगे पता नहीं किहो जिहा क्वेश्चन देखो ध्यान दे नाल बहुत सिंपल है मैं हुण की आ आपां नूं दित्ता होया इत्थे a - b क्यूब छोटे अखरां 'च लिखना मैं a मान लिया वड्डा राइट यानी यह मेरा हो गया जी a - b दे बराबर b आ जिहड़ा मैं उहनूं मान लिया जी b - c जिहड़ा c है उहनूं मान लिया मैं c - a राइट है ठीक है मैं तो सिर्फ ये देखना है भी किते a + b + c 0 तो नहीं बन रहे किते a + b + c 0 तो नहीं बन रहे तो फिर यह की बन जूगा ये बन जूगा जी a³ प्लस b³ प्लस c³ क्योंकि a नूं मैं a - b मान लिया b नूं मैं b - c मान लिया c नूं मैं c - a मान लिया राइट तो जो मैं a + b + c देखा तो इन्होंने जो मैं जोड़ूंगा तो वैसे तो इत्थे सीधा मैनूं पता लगी जाता पर फिर भी तुहानूं मैं करके दिखा दिना कि इन्हां तिन्नां नूं जो मैं जोड़िया तो a प्लस का a माइनस का b माइनस का b प्लस का c माइनस का c प्लस का ये तो सारे कट्टे गए ये तो 0 ही आ गया ये तो 0 ही आ गया जदों a + b + c 0 दिता होगा तो a³ + b³ + c³ हमेशा किहदे बराबर होगा 3ab c दे बराबर होगा हमेशा 3ab c दे बराबर होगा तो मैं वैल्यू पुट कर दिना क्योंकि मैनू a आ जिहड़ा वो a - b दे बराबर दिता होया b आ जिहड़ा वो मैनू b - c दे बराबर दिता होया c आ जिहड़ा मैनू वो c - a दे बराबर दिता होया तो मेरा आंसर आ गया यानी 3a - b - c - a मेरा आंसर आह बन गया है यह मेरा आंसर आ गया कितना ज़्यादा सौखा कितना ज़्यादा आसान है समझ लगी बस सिर्फ एक चीज़ फाइंड आउट करनी है कि किते a + b + c 0 तो नहीं बन रहा वो भी कदों जदों आपां नूं क्यूब 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 दिता होवे पहचान अपने आप आउण लग जूगी इन्हां क्वेश्चनां दी जदों प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर तरीके दे नाल नोट्स बनाओगे अज आपां यही कंसैप्ट आ जिहड़ा पूरा करके जाना है हुण वीडियो नूं पॉज करके एक बारी सॉल्व करके देखियो चलो आह क्वेश्चन राइट हुण मैनू इत्थे x - y दा होल क्यूब प्लस y - z दा होल क्यूब प्लस z - x दा होल क्यूब अपॉन 3x - y y - z x दिता होया राइट मैं की करदा मैं जी अपने दिमाग दे विच a नूं x - y मान लिया b नूं y - z मान लिया c नूं मैं z - x मान लिया यानी यह मेरे को की बन गया ये मेरे को बन गया a³ + b³ + c³ बन गया तो नीचे की बन जाऊगा 3abc आह ए आ आह बी आ ते आह सी है राइट मैनू शॉर्ट दे विच इस तरीके दे नाल लिख लिया कितना ज़्यादा सौखा बन गया राइट हुण मैं देखदा भी किते a + b + c 0 तो नहीं बन रहे देख लेने यानी x - y + y - z z - x बराबर 0 बन जूगा क्योंकि x y नाल y कट्टा गया z नाल z कट्टा गया 0 बन गया अगर a + b + c 0 बन गया तो फिर a³ + b³ + c³ किहदे बराबर होगा यह 3abc दे बराबर होगा 3abc दे बराबर होगा तो नीचे भी मैनू 3abc ही दिता होया नीचे भी मैनू 3abc ही दिता होया तो आ तां भाई कट्टे गए आंसर की आ जाऊगा मेरा सिर्फ एक आंसर आ जाऊगा यानी कहने का मतलब आंसर मेरा एक आ गया आंसर मेरा एक आ गया क्योंकि नीचे भी मैनू 3abc ही दिता होया तो आ भी
3 ABC के बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि A प्लस B प्लस C 0 आ गया। कितना ज़्यादा आसान है। राइट हो गया भाई। तो जेकर समझ लगी तो वीडियो को लाइक तो शेयर तो बाकियों को दसो कि हुण मैथ की फिक्र करने की लोड़ नहीं, क्योंकि आप चैनल ही एक डेडिकेट होकर बना लिया। इत्थे आप मैथ करांगे पूरा। चलो अगला हुण क्वेश्चन देखो ध्यान दे नाल। जिवें आपां कोले आ गया क्वेश्चन, कहंदा जी A प्लस B प्लस C। हुण आपां नूं क्यूब क्यों दिता होया, तो मैं पहले ही मान लेना कि मैं कैपिटल A मान लिया कि A प्लस B माइनस 2C नूं मान लिया। राइट है। B मैं मान लेना जी B प्लस C माइनस 2A नूं मान लिया। C मान लेना मैं C प्लस A माइनस 2B नूं मान लिया। किते A प्लस B प्लस C 0 तो नहीं बन रहा, मैं नाल दी नाल देख लेना। हुण जां तां सारा लिख लो, तुसीं इत्थों भी कट सकदे, क्योंकि इन्हां नूं आपां प्लस ही करना। तिन्नां नूं प्लस करोगे तो देखो ध्यान दे नाल, आह A है। राइट, आह A है तो एक A आ पिया, ये 2A बन गया। 2A तो 2A माइनस का पिया कट्टिया जाऊगा। इस तरीके नाल आह B है, आह B है, 2B बन गया। 2B प्लस का 2B माइनस का आह कट्टिया गया। इस तरीके नाल एक C है तो एक C है, 2C बन गया। 2C माइनस 2C कट्टिया गया, यानी यह तिने जोड़ के 0 बन गया। तो जेकर A प्लस B प्लस C 0 होवे तो फिर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब किहदे बराबर होगा जी? 3ABC दे बराबर होगा। 3ABC दे बराबर होगा, ये आपां नूं पता लग गया। यानी कहने का मतलब इन्हां दी थां ते मैं की लिख सकदांगा 10ABC। क्यों? क्योंकि यह A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बनया। A प्लस B प्लस C 0 आ गया, तो इन्हां दी थां ते मैं 3ABC लिख सकदा। ठीक है। नीचे A प्लस B प्लस माइनस 2C ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A है। राइट है जी। आह की है? ये B है जी। आह की है जी? ये C है। तो ABC ते ABC तक कट्टिया गया, सिर्फ 3 रह गया, यानी 3 ही मेरा आंसर है। यानी 3 आंसर है तो मेरा C आंसर बन गया। तो मेरा C आंसर आ गया। कितना ज़्यादा आसान हो गया। राइट है। इक्को कंसैप्ट किन्ने ही क्वेश्चनों के काम आ रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन पेपर के पक्का आउंदे आ, खास करके पंजाब पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, खास करके इन्होंने एग्जाम के क्वेश्चन पक्का आते हैं। वीडियो के भी आ सकते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन है उत्थे। राइट, असो ये क्वेश्चनों को पक्का करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ने। अगला क्वेश्चन भाई सॉल्व करना जल्दी जल्दी। देखो ध्यान देना, हुण यह क्वेश्चन भी वधिया गा। हुण आपां नूं इत्थे दिता होया जी A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर का होल क्यूब, B स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर का होल क्यूब, C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर का होल क्यूब। क्वेश्चन वधिया, थोड़ा जिहा दिमाग लाउणा पैना। मैं की करदा जी, कैपिटल A मान लिया किनू? A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर नूं। राइट है। B मान लिया मैं B स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर नूं। C मान लिया मैं C स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर नूं। राइट है। मैं देखदा किते A प्लस B प्लस C 0 तो नहीं बन रहे, यानी जो मैं देखा A प्लस B प्लस C 0 तो नहीं बन रहे, तो बन जाएंगे किमें? देखो A स्क्वेयर है, माइनस का कट्टिया गया, C स्क्वेयर है तो C स्क्वेयर कट्टिया गया, माइनस B स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर। राइट है। यानी कहने का मतलब A प्लस B प्लस C 0 बन गया। इन्हों मैं A स्क्वेयर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब लिख सकता सी। राइट, यानी A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब जो उपर लै, यह A प्लस B प्लस C 0 होने करके 3ABC दे बराबर आ गया। 3ABC दे बराबर आ गया। ध्यान दे नाल 3ABC दे बराबर आ गया। राइट है। नीचे मेरा हजे आही है। हुण बहुत सिंपल जी गल है, ध्यान दे नाल। हुण नीचे भी आह दिता होया, देखो हुण नीचे की है A माइनस B का होल क्यूब, B माइनस C का होल क्यूब, C माइनस A का होल क्यूब। हुण आपां ABC तो चलो इनू मान लिया, इनू मैं मान लेना चलो X, इनू मैं Y कैपिटल च मान लेना, इनू मैं Z मान लेना। गल तो वही है, कोई चक्कर वाली गल नहीं, मनना तो आपां कुछ भी सकते हैं। राइट है। तो बेसिकली मैं X मान लिया जी A माइनस B नूं, Y मान लिया मैं B माइनस C नूं, ते Z मान लिया मैं C माइनस A नूं। हुण मैं देखदा किते X प्लस Y प्लस Z 0 तो नहीं बन रहा। X क्योंकि गल तो वही है, ABC नाल मनना तो कुछ नहीं होता, आप गलबात करते। राइट, यानी X प्लस Y प्लस Z 0 तो नहीं बन रहा। देख लें, A है जो A नाल कट्टिया गया, C है जो C नाल, B है जो B नाल, यानी X प्लस Y प्लस Z है जो 0 आ गया। तो यानी उस तो बाद मेरा X क्यूब प्लस Y क्यूब प्लस Z क्यूब किहदे बराबर आ जाऊगा जी? 3XYZ के बराबर आ जाऊगा। गल तो वही है ना, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब 3ABC। गल तो वही है। इत्थे बस आपां क्योंकि ABC इहनूं मान लिया सी, तो फिर यानी पजल हो जाती, आपां इहनूं XYZ मान लिया बस। यानी कहने का मतलब आह X क्यूब है, आह Y क्यूब है प्लस Z क्यूब है, यानी X क्यूब प्लस Y क्यूब प्लस Z क्यूब भी 3XYZ के बराबर हो जाऊगा। कदों? जदों X प्लस Y प्लस Z 0 होगा, तो हो गया। राइट, यानी कहने का मतलब की है कि अपने कोले जिहड़ी वैल्यू आ गई वो
3XYZ आ गई, 3XYZ आ गई। यानी मैं इत्थे की लिख सकदा 3XYZ, 3XYZ ध्यान दे नाल, राइट है। क्यों? क्योंकि ए स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर दा होल क्यूब, बी स्केयर माइनस ए बन गया सीगा, तो आ बन गया 3ABC, आह बन गया 3XYZ। 3 नाल मेरा 3 कट्टिया गया। हुण आ गया यानी ABC ते XYZ। हुण ABC की है अपने कोले, A की है अपने कोले, A हैगा जी A स्केयर माइनस बी स्केयर, B की है अपने कोले B स्केयर माइनस C स्केयर, C की अपने कोले C स्केयर माइनस ए स्केयर। पजल नहीं होना क्योंकि मैं इनू ए मन्निया सी, इनू बी मन्निया सी, इनू सी मन्निया सी, तो ABC आ गया, तो मैं उही लिख लिया XYZ आ गया। इनू मैं X मन्निया तो A माइनस B आ गया, इनू मैं Y मन्निया तो B माइनस C आ गया, इनू मैं Z मन्निया तो C माइनस A आ गया। ध्यान दे नाल हुण आह एक फार्मूला हुंदा गा, ध्यान दे नाल कि A स्केयर माइनस B स्केयर जिहड़ा हुंदा ना वो A माइनस B ते A प्लस B दे बराबर हुंदा कि नहीं। छोटे हुंदे पढ़दे आए होंगे, ध्यान दे नाल कि A स्केयर माइनस B स्केयर हुंदा गा जी A प्लस B ते A माइनस B दे बराबर हुंदा, हमेशा ध्यान दे नाल रखियो, राइट, हमेशा ध्यान रखियो। तो A स्केयर माइनस B स्केयर A माइनस B A प्लस B दे बराबर हो गया। सेम B स्केयर माइनस C स्केयर A B माइनस C ते B प्लस C दे बराबर हो गया। C माइनस A यानी C माइनस A ते C प्लस A दे बराबर हो गया, राइट। तो इनू उपरले नू आपां लिखता, नीचे अपने कोल A माइनस B B माइनस C ते C माइनस A हैगा ही है। तो A माइनस B ना कट्टिया गया, B माइनस C ना कट्टिया गया, C माइनस A नाल कट्टिया गया। यानी अपने कोल कल प्लस प्लस की वैल्यू बच गई, यानी A प्लस B बच गया, B प्लस C बच गया, C प्लस A बच गया। यानी आंसर अपना की आ गया A प्लस B प्लस C प्लस A, अपना आही आंसर है, अपना आही आंसर है। A प्लस B प्लस C ते इंटू C प्लस A प्लस B प्लस C आह, ठीक है ना। सो आ भी नहीं आंसर बन सकता, आ भी नहीं आंसर बन सकता, आ भी नहीं। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन उही है, मैं दस्या कि कंसैप्ट सेम है, क्वेश्चन घुमा घुमा के आउणगे, पढ़ने आपां समझने आपां, प्रैक्टिस अपने आप समझाउण लग जूगी। बहुत ही सौखा सीगा। A क्यूब माइनस B क्यूब तुहानूं देखदे ही पता लग जाना चाहिए कि यह बनूगा मेरा 3 A स्केयर माइनस B स्केयर माइनस C स्केयर माइनस A स्केयर, आह बन जूगा मेरा 3 A माइनस B माइनस C माइनस A। यानी 3 नाल 3 कट्टिया गया, जिहड़ा आपां कट्टता, तो आह A स्केयर माइनस B स्केयर माइनस C स्केयर माइनस A स्केयर। यानी इत्थे A माइनस B इंटू A प्लस B माइनस C इंटू B प्लस C माइनस A इंटू C प्लस A, तो माइनस माइनस वाले नीचे है, माइनस वाले कट्टे जाएंगे, कल्ले प्लस वाले रह जाएंगे। यानी मूँह जबानी क्वेश्चन अपने आप करना लग जाओगे। आंसर सीधा अपने को आ गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन की है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन भी देखो, आपां नूं की दिता होया, कहंदा जी x बराबर है B माइनस C दे, y बराबर है B ब्रैकेट दे विच C माइनस A, Z बराबर है C ब्रैकेट दे विच A माइनस B। तो आपां नूं पुछ लिया कि x अपॉन A दा होल क्यूब, y अपॉन B दा होल क्यूब प्लस C अपॉन Z दा होल क्यूब किहदे बराबर होगा। हुण क्वेश्चन देखण दे विच इह भी डरावना लगदा हो, पर क्वेश्चन दे विच कख भी नहीं हैगा। देखो ध्यान देना, मैं इत्थों लगदा, इत्थों मैं x नूं इत्थे A नूं नीचे लियाउणा, x अपॉन A कर लेना। x अपॉन A मेरा B माइनस C दे बराबर आ गया ना, आ A इधर ले आया। सेम मैं y नूं देख लेना, y B लियांदा नीचे, तो y इत्थे C माइनस A रह गया, उवें ही Z करदा, तो Z अपॉन C, तो इधर A माइनस B रह गया, A माइनस B रह गया, राइट है। यानी कहने का मतलब इस वैल्यू नूं मैं A मान सकदा, इस वैल्यू नूं मैं B मान सकदा, इस वैल्यू नूं मैं C मान सकदा, मान लिया मैं, राइट है। यानी कहने का मतलब यह A है, यह B है, तो आह C है। यानी जेकर A प्लस B प्लस C 0 हो जाए, तो फिर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब 3ABC के बराबर आ जाऊगा। ये तो अपन पता ही है, 3ABC के बराबर आ जाऊगा। ये मैं क्यों कढ़ना, क्योंकि मैंने इसे की वैल्यू ही पूछा होया। x अपॉन A नूं जेकर मैं A कह दा, तो आह की बन जूगा A क्यूब, आह की बन जूगा y अपॉन B B क्यूब, तो आह की बन जूगा तुहाडा C अपॉन Z C क्यूब। तो इसे की वैल्यू मैं कढ़नी है, तो जे यह 0 बन जाए तो फिर 3ABC के बराबर आ जाएगा, 3ABC के बराबर आ जाऊगा। देख लो, तो B है, B नाल कट्टिया गया, जो जोड़ांगे ना सारे है ना, जो सारे जोड़ांगे A प्लस B प्लस C करांगे, राइट। C है जो C नाल कट्टिया गया, A है जो A नाल कट्टिया गया, तो 0 तो बन गया। यह मतलब यह 3ABC के बराबर आ जाऊगा, यानी आह 3ABC के बराबर है। तो आंसर की आ जाऊगा 3
ए की वैल्यू की आ x अपॉन ए, b की वैल्यू की आ y अपॉन b, तो c की वैल्यू की आ z अपॉन c, यानी यह कितना आ गया जी 3xy z अपॉन ए बी सी, 3xyz अपॉन ए बी सी, तो ये बराबर आ गया। यानी कहने का मतलब अपने को आंसर की पिया 3xyz ए बी सी। इन्होंने क्वेश्चनों तो भज्जो ना, जेकर थोड़ा यह लगता कि 15 के विचों जेकर यहो जे 2 क्वेश्चन आ भी जाएंगे तो कोई चक्कर नहीं, असीं छड्ड दांगे। भरावो 15 क्वेश्चनों के विचों ਉਹੀ 2 क्वेश्चन सिलेक्शन देणगे, वो 13 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ आ रहे हैं वो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ आ रहे हैं। ਅੱਜ ਦਾ टाइम कुछ भी चीज़ ਛੱਡਣ ਦਾ नहीं हैगा, यानी ਜਿਹੜੀ चीज़ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ चीज़ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਐਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਰਤਾ ਨਾ सिलेक्शन उसकी है। बस इन्होंने चीज़ों पर गौर करो, यहो जे क्वेश्चन सौखे होंगे आ, बस उही गल आ भी ना कोई टीचर इन्नी डेडिकेशन होके डेडिकेशन नाल कराउंदा है, डेडिकेट होकर कराउंदा है, तो ना स्टूडेंट करता है। मैं डेडिकेशन नाल कराउण नूं तैयार हाँ तो करा भी रहा, बस तुसीं कर लो। सिंपलीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन तुहाडा नहीं रुकना, ये मेरी गारंटी है। राइट है, सो 3xyz अपॉन ए बी सी आ गया। बस कितना ज़्यादा सौखा कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, हुण अगला क्वेश्चन भी देखने दे बड़ा टिपिकल है। कहता जी x की पावर a y की पावर b गुणा z की पावर c बराबर 1 है, तो फाइंड कहता a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वटा ए बी सी। यार ध्यान दे गल ही नहीं समझ लगी भी, इधर तो x y z दिता होया, उधर आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब पूछ लिया, यानी जो आपको आह पूछ लिया तो किते ना किते a प्लस b प्लस c 0 बनता हो। क्वेश्चन ही तां दिता आपको, ये समझ आनी चाहिए है। राइट है, हुण देखो सीधी जी गल है कि x दी गुणा ए y दी पावर b गुणा z दी पावर c, z दी पावर c। राइट है, यानी कहने का मतलब मैं ये लिख लिया x गुणा a, यानी इत्थे सॉरी x y नहीं आऊगा, इत्थे की आऊगा, एक मिनट, इत्थे की कर लो एक मिनट, x a x b एंड एक्स सी एवं कर। राइट, यानी कहने का मतलब इतने वाई वाला कट दो क्योंकि उमें बनना नहीं। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन के गड़बड़ एवं कर लो। ठीक है, एक्स बी एक्स सी। राइट, तो हुण इधर है एक नूं मैं की एक्स की पावर 0 नहीं लिख सकता, एक नूं मैं एक्स की पावर 0 नहीं लिख सकता, किसी की भी पावर 0 हो हमेशा एक होंदा। ये ध्यान दे विच रखना कि किसी की पावर 0 हो, जिवें आपां कहने आ कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, तो जो 2 की पावर 0 हो तो वह हमेशा 1 होगा। जे मान लो 4 की पावर 2 आ तो 16 होगा, 4 की पावर 3 आ तो 64 होगा, 4 की पावर 0 हो तो वह भी 1 होगा, 1000 की पावर 0 हो तो भी वह 1 होगा। यानी किसी भी इंटीजर की पावर जेकर 0 हो तो वह 1 होगा। यानी इधर x दिता होया तो मैं इधर x की पावर 0 मान ली, वो 1 आ गया। अच्छा, जो बेस बराबर हो, जो पावर का बेस बराबर हो, इनू बेस कहते हैं, आ पावर है। जो बेस बराबर हो तो मैं इनू नहीं लिख सकता a प्लस b प्लस c, पावर जुड़ जाती है ना, पावर जुड़ जाती है। जो मान लो आह 10 की पावर 2 है ना इंटू 10 की पावर 3, तो इनू मैं जो बेस बराबर है तो 10 की पावर 5 भी तो लिख सकता ना, उही गल है। राइट, यानी कहने का मतलब की आ कि इतने एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी है इंटू दे विच आ, तो बेस सेम आ, पावर में जोड़ करता, एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी 0, यानी बन गया। राइट, इधर की आ गया 0 आ गया। आमने सामने बेस अपने बराबर है तो पावर भी अपन बराबर हो जाएगियां। आमने सामने जो बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर हो जाएगियां, यानी a प्लस बी प्लस सी की आ गया 0 आ गया, a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। देखो किन्ने इनडायरैक्ट मैथड के नाल आपां नूं कढ़ना पिया, पर हैगा a प्लस बी प्लस सी 0 ही है, a प्लस बी प्लस सी 0 ही है। तो फिर जो a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किहदे बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। नीचे भी आपको abc दिता होया कट्टिया जाऊगा, सिर्फ आंसर कितना आ गया अपने को 3 आंसर आ गया, यानी अपना आंसर आ पिया 3 आंसर आ गया। कितना ज़्यादा सौखा कितना ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, पर इस तरीके क्वेश्चनों करना भी जरूर है। अगला देखो हम आपको देता, ये तो होर भी सौखा हो गया। आपको कहता इफ a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो दसो भाई ये वैल्यू की आऊगी, ये तो होर भी ज़्यादा सौखा हो गया। किमें देखो आपको आ दिता होया, मैं की करदा इत्थे बी सी है, इत्थे ए सी है, इत्थे ए बी है, तिन्ने किते है नहीं, तो मैं एलसीएम ले लिया ए बी सी।
राइट है। बी सी नाल कीता मल्टीप्लाई तो इत्थे ए नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा, बी सी तो बी सी है ना, ए है नहीं तो ए क्यूब हो जाऊगा। लघुत्तम तो लेना आउंदा होगा, ठीक है। इत्थे ए सी है, ए सी यानी बी नाल मल्टीप्लाई हो जू, यानी बी क्यूब हो गया। इत्थे ए बी है, सी है नहीं यानी सी नाल मल्टीप्लाई हो जू, सी क्यूब। एलसीएम तो लेना होगा ना, तो बेसिकली मैं ए बी सी एलसीएम ले लिया, तो इत्थे बी सी है, ए नाल मल्टीप्लाई हो गया, ए क्यूब आ गया। ए सी है तो बी नाल मल्टीप्लाई हो गया, बी क्यूब आ गया। ए बी है तो सी नाल मल्टीप्लाई होगा, सी क्यूब आ गया। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी बन गया। क्या बात है, तो पिछला ही क्वेश्चन बन गया। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा कदों, जो ए प्लस बी प्लस सी 0 है। तो आपको दिता ही होया, आपको मत्था मारन की लोड़ पई ही नहीं, तो कट्टिया गया। यानी सिर्फ 3 आंसर आ गया, ए बी सी कट्टिया गया, 3 आंसर आ गया। तो फिर अपना आंसर आहा पिया, अपना आंसर आहा पिया है। कितना ज़्यादा सौखा तो कितना ज़्यादा आसान है। हुण आ क्वेश्चन कितना ज़्यादा वधिया ते कितना ज़्यादा सौखा लगूगा। देखियो हुण आ क्वेश्चन पेपरां दे विच बड़ा आउंदा कि 0.98 दी होल क्यूब प्लस 0.02 दी होल क्यूब प्लस -1 दा होल क्यूब -3 इंटू 0.98 0.02 ते -1। हुण देखो ध्यान दे नाल कि यह फार्मूला तुहानूं नहीं दिख रहा कि ए क्यूब होवे जी, बी क्यूब होवे प्लस माइनस दा सी क्यूब होवे -3 ए बी ते माइनस दा सी राइट है। यह तुहानूं उही फार्मूला नहीं दिख रहा कि जिहड़ा आपां स्टार्टिंग दे विच कीता सी कि ए प्लस बी प्लस सी दा होल क्यूब -3 ए बी सी बराबर हुंदा जी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी ते माइनस सी ए। यानी जेकर मन लो जेकर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी जेकर मान लो कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होवे तो सारा ही वैल्यू 0 हो जू, 0 इंटू 0 यानी ये 0 ही आ जाऊगा, यानी ये 0 ही आ जाऊगा, 0 ही आ जाऊगा। ध्यान दे नाल 0 ही आ जाऊगा राइट। पर शर्त की है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होवे राइट। जां फिर आप दूसरा कढ़िया सी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कि आ जाऊगा जी 3abc दे, 3abc दे जिहदे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले। पर जे आह 3abc इधर लैके आइए ही ना, आह 3abc इधर का -3abc रहे तो फिर पूरे की वैल्यू 0 ना बन जू। आप 3abc उधर लै गए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc बराबर आ जू। जे आप 3abc उधर ना लैके जाइए तो इक्वेशन तो आ भी बनती है ना, तो आह उही इक्वेशन बनती है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0 हो जाऊगा। पर कदों हो जाऊगा जब ए प्लस बी प्लस सी 0 दिता हो। कढ़ के देख लें हुण इहनूं मैं ए मान लेना 0.98 मैं ए मान लिया राइट। बी मान लेना मैं 0.02 तो सी मान लेना मैं -1 सी मान लेना मैं -1 तो मैं ए प्लस बी प्लस सी करके देखदा, ए प्लस बी प्लस सी करके देखदा 0.98 प्लस 0.02 ते -1 आह बन जाऊगा पूरा 1 माइनस 1 की हो जाऊगा 0। यानी ए प्लस बी प्लस सी 0 बन गया। ਇਹਦਾ मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0 दे हो जाऊगा। यानी ਇਹਦਾ आंसर कितना आ गया, सिर्फ 0 ही आ गया। ਇਹਦਾ आंसर की आ गया 0 आ गया। क्यों? क्योंकि इत्थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी की वैल्यू नैगेटिव है माइनस सी क्यूब -3abc सी की वैल्यू नैगेटिव है 0 ही आ गया। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 बनता है, ए प्लस बी प्लस सी 0 बनता है। समझ में बात आई? कितना ज़्यादा सौखा कितना ज़्यादा आसान राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो हुण इहो जिहा क्वेश्चन हुण सिंपलीफिकेशन ही है, सिंपलीफिकेशन ही है। देखो हुण आपां नूं इत्थे दित्ता होया जी 28 का क्यूब। मैं की करदा ए की वैल्यू मान ली 28, बी की वैल्यू मान ली 72, सी की वैल्यू मान ली -100। तो मैं की करदा जी ए प्लस बी प्लस सी देख लेना 0 तो नहीं बनता। तो 28 प्लस 72 -100 तो ये तो 0 बन गया। ਇਹਦਾ मतलब जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc बराबर 0 ही होगा। ए प्लस इत्थे क्यों आ गया? पिछली बार तो माइनस ही, क्योंकि अपन पता कि जो ए प्लस बी प्लस सी 0 होवे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 0 हुंदागा, माइनस हुंदा। इत्थे तो प्लस है। ध्यान दे नाल क्योंकि सी की वैल्यू नैगेटिव आ -100 है, ए -100 तो जे इत्थे माइनस होवे तो माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੀ ਆ a ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ b ਕਿਊਬ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ a ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ b ਕਿਊਬ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਮਾਈਨਸ c ਕਿਊਬ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ 3abc ਬਰਾਬਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ a ਪਲੱਸ b ਪਲੱਸ c 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੇ ਵੀ नहीं खाना, जीरो तो यही बना रहा ना, तो नैगेटिव वैल्यू है इस करके, राइट। यानी कहने का मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा हमेशा जेकर a प्लस b प्लस c 0 दिता होया है। आह कंसैप्ट नूं हमेशा अपने ध्यान दे नाल रखना क्योंकि पेपर दे विच पक्का आउंदा है। हुण अगली क्लास दे विच आपां की करनागा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ a ਬਰਾਬਰ 94 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, b ਬਰਾਬਰ 95 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, c ਬਰਾਬਰ 96 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ a ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ b ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ c ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3abc ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ 94 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 95 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 96 ਦਾ ਕਿਊਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ शायद सॉल्व तो हो जाए पर गलत हो जाए, राइट। इन्नी कैलकुलेशन नहीं करनी, हजे तो -3 गुणा 94 गुणा 95 गुणा 96 करांगे, राइट। असो इस तरीके दे सॉल्व नहीं करने, पर किवें करांगे, किवें शॉर्टकट आऊगा थानूं मैं दसूंगा किस तरीके दे नाल करने वो आपां अगली क्लास च देखांगे। एंड किवें लगी पहली क्लास तो लाइक कमेंट शेयर ते कमेंट करके जरूर दसना। ते बाकी ऑफलाइन जेकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहुंदे हो तो बठिंडे का एड्रैस आ, आह कंटैक्ट नंबर आ, आह मेरा नंबर है, गलबात करनी है तो प्रॉपर तरीके दे नाल तुसीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, राइट। उस तरीके दे नाल स्टडी मटीरियल मंगा सकते हो, उस तरीके दे नाल अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। एवें एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे लॉगिन करोगे तो इस तरीके का पेज निकल आऊगा, तुसीं स्टोर दे विच जाके बहुत सारे लैक्चर वगैरह देख सकते हो, राइट। मैथ कंप्लीट भी पढ़ सकते हो जेकर कंप्लीट मैथ करना चाहुंदे हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपां होर नवीं वीडियो नाल इस तरीके दे नाल मिलदे रहांगे। बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला चो इस तरीके नाल पढ़दे रहो। थैंक यू सो मच। बाकी वध तो वध शेयर करो, इस तरीके दे नाल आपां नवीं वीडियोज़ तुहाडे वास्ते लैके आउंदे रहांगे। सो मच।